الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صلاۃ خوف کی ہم نے دو صورتیں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب اس باب کی آخری حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ خوف میں حاضر تھا۔ فصففنا صفین، آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کے پیچھے دو صفیں بنائیں، صففنا صفین خلف رسول اللہ، ہم نے آپ کے پیچھے دو صف بنائیں، والعدو بیننا وبین القبلہ، دشمن جو ہے وہ ہمارے اور قبلے کے بیچ میں تھا، یعنی دشمن بالکل سامنے ہے، دشمن بالکل سامنے ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام دو صفوں میں ہیں۔ جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، یعنی میں نماز پڑھا رہا ہوں، تو یہ سمجھ لے کہ میرے پیچھے دو صفیں ہیں، میری جتنی بھی جماعت کے افراد ہیں، مجاہدین ہیں، وہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ دشمن چونکہ سامنے ہے، اس لیے اب سب کھڑے ہوں گے تو پریشانی کا معاملہ نہیں ہے۔ ون 150 کے مسائل نہیں لکھے تھے آپ نے، اس میں بس صرف ایک ہی نوٹ لکھنا ہے آپ نے۔ حدیث میں 150 میں صرف ایک حاشیہ لگا دیں آپ چھوٹا سا۔ حدیث میں موجود نماز کی صورت، حدیث میں موجود نماز کی صورت جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو ہم نے دو صفیں بنا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، دشمن ہمارے سامنے ہے۔ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا جمیعا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کہا اور ہم سب نے بھی اللہ اکبر کہا۔ حدیث پر اگر دھیان ہوگا تو آپ کو یہ صورت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے رسول امام ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے دو صفوں میں ہیں، دشمن بالکل سامنے ہے، تو تکبیر تحریمہ سب نے کہی ہے، اللہ کے رسول نے بھی اور دونوں صحابہ کرام کی جماعت نے بھی۔ ثم رکع، پھر آپ رکوع میں چلے گئے، ورکعنا جمیعا، اور ہم سب بھی رکوع میں چلے گئے، یہ بھی ایک ساتھ ہوا۔ ثم رفع رأسہ من الرکوع، آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، ورفعنا جمیعا، اور ہم سب نے بھی اٹھایا۔ اب تلک تو سب کچھ ایک ساتھ ہے، تکبیر تحریمہ بھی ایک ساتھ، رکوع بھی ایک ساتھ، رکوع سے سر اٹھانا بھی ایک ساتھ۔ تبدیلی آئے گی یہاں پر، ثم انحدر بالسجود، پھر آپ سجدے کے لیے چلے گئے، صرف آپ گئے اور والذی یلیہ، اور وہ صف جو آپ کے ساتھ تھی وہ گئی ہے۔ سجدہ صرف امام کرے گا اور امام کے ساتھ پیچھے والی صف، جو سیکنڈ صف ہوگی وہ کھڑی رہے گی دشمن کے سامنے۔ سارے سجدے میں چلے گئے پھر تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے وہ۔ حدیث میں آتا ہے دشمنوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ مسلمانوں پر کیسے حملہ کریں، تو انہوں نے مشورے کے بعد ایک بات پیش کی کہ ان کی ایک عبادت ایسی ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو نہ تو وہ اپنا مال یاد رکھتے ہیں نہ اپنی اولاد یاد رکھتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے نماز۔
बस नमाज का इंतजार करो। ये दुश्मन मुसलमानों की नमाज से मोहब्बत की गवाही दे रहा है कि जब वो इबादत का वक्त आता है, ना उनको अपने अहलो याल की परवाह होती है, ना अपने माल की, ना अपनी, उस वक्त तुम हमला करना। जी अस्सलाम वालेकुम, नेट का मसला हो गया था इस वजह से। आगे पढ़ते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए, वो सफ़ुल्लज़ी यली, और वो सफ भी पीछे जो आपके थी सजदे में चली गई। वक़ाम सफ़ुल्लज़ी, और खड़ी रही वो सफ, कौन सी? वक़ाम सफ़्फ़ु अल मुअख्खर, जो पीछे थी, यानी दूसरी सफ, वो खड़ी रही फी नहरिल अदुफ, दुश्मन के मध्य मुकाबिल। फलम्मा कदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुजूद, मुकम्मल किया और खड़े हो गए। वकाम सफ़ुल्लज़ी यली, और आपके साथ मुत्तसिल सफ भी खड़ी हो गई। इन हदरा सफ़ुल मुअख्खर बिस्सुजूद, सेकंड सफ सजदे में चली गई। वकाम, और वो भी खड़े हो गए। अब एक नबी अलैहिस्सलाम के साथ सजदा किया था अगली सफ ने, इस सफ ने तो अपना किया है, इमाम का तो नहीं किया। इन्हें भी तो मौका देना चाहिए था। नबी अलैहिस्सलाम ने मौका इस तरह दिया, सुम्मा तक़द्दम सफ़ुल मुअख्खर, पीछे वाली सफ आगे आ जाएगी, व तअख्खर सफ़ुल मुअख्खर, आगे चले। अगर पीछे और पीछे वाली सफ आगे आ गई, दोबारा वही सीन रिपीट होगा। कौन सा? नबी इस्लाम ने रुकू किया, वरकाना जमीयन, हम सब ने रुकू किया। सुम्मा फरासहु मिन रुकू, आपने रुकू से सर उठाया। वरफअना जमीयन, और हम सब ने भी रुकू से सर उठाया। क्या आवाज सही नहीं आ रही? क्या हुआ? कट रही है, बताएं क्या करें अब आ गई? अभी ठीक है, ठीक है जी। दुश्मन से लड़ाई हो रही है, थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम तो होगा, ठीक है। अब रुकू भी मुकम्मल हुआ, रुकू से रही थी, तो सुम्मन हदरा, नबी अलैहिस्सलाम झुके सजदे के लिए। वसफ़ुल्लज़ी यली, सजदे में चली गई जो आपसे मुत्तसिल, वो सफ जो पहली रकत में पीछे खड़ी हुई थी, वो भी सजदे में चली गई। वकाम सफ़ुल मुअख्खर, और पीछे वाली सफ खड़ी रही फी नहरिल अदुफ, दुश्मन के सामने। फलम्मा कदन नबी सल्लल्लाहु सुजूद, जब नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा मुकम्मल कर लिया। वल्लज़ी यलीही, और वो सफ जो आपके करीब थी उसने भी सजदा मुकम्मल कर लिया। इन हदर सफ़ुल मुअख्खर बिस्सुजूद, पीछे वाली सफ सजदे में चली गई और उन्होंने सजदा किया, और नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा। वसल्लमना जमीअन, हम सब ने सलाम फेर दिया। ये सूरत हुई मुकम्मल। मेरे सामने है, रहा हूं,
और मेरे पीछे मेरी जमात के 2 हिस्से कर दिए गए, 2 सफों में मैंने तकसीम कर दिया फौजियों को। तकबीर एक साथ पढ़े, सफों ने तकबीर कहनी है, हम रुकू से सर भी एक साथ उठाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं और मेरे पीछे वाली सफ सजदे में जाएगी, सेकंड वाली सफ सजदे में नहीं जाएगी। वो सजदे में क्यों नहीं जाएगी? रुकू भी एक साथ, क़याम भी एक साथ, रुकू से सर भी एक साथ उठाया है। क्या वजह है कि मैं और पीछे वाली सफ तो सजदे में जाएंगी लेकिन सेकंड वाली नहीं जाएगी? बिल्कुल, इसलिए कि इसमें दुश्मन को पूरा मौका मिल जाएगा हमला करने का, दिफा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए जब हम सजदा करके खड़े होंगे तो वो सेकंड सफ जिन्होंने सजदा करना था वो सजदे में चली जाएगी, सजदा करने के बाद वो भी खड़ी। अब क्या होगा? सफ चेंज, सफ पीछे चली जाएगी, दोबारा वही करेंगे, रुकू भी एक साथ, क़याम भी एक साथ, रुकू से सर भी एक साथ उठाएंगे, सजदा इमाम करेगा और पहली सफ करेगी, दूसरी सफ अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। अब जब पहली सफ और इमाम सजदा करके बैठ जाएंगे तो दूसरी सफ सजदे में सूरत है जो सलाते खौफ की आपके सामने इस हदीस की रोशनी में आई। पहली सफ सजदे दो, जी जी बिल्कुल, यानी एक रकत के जो सजदे 2 होते हैं, हर सफ ने एक एक अपना किया और एक एक इमाम के साथ किया, यानी एक रकत के दोनों सजदे इमाम के साथ करने और एक रकत के सजदे दोनों अपने अकेले करने हैं। जी, असले के साथ ही नमाज पढ़ी जाएगी। जी, पहली रकत के दोनों सजदे वो सफ जो इमाम के साथ खड़ी हुई है वो इमाम के साथ करेगी, और जो सफ इमाम के पीछे है सेकंड सफ वो अपने साथ जाती करेगी, अलग अलग। जी, इस हदीस के मसाइल लिख लें। लश्कर के सिपा सालार यानी कमांडर, लश्कर के कमांडर की यह शरई जिम्मेदारी है लश्कर के कमांडर की यह शरई जिम्मेदारी है कि वह इबादत के वक्त भी अपनी फौज को चौकस रखे, यानी मुतहर्रिक, एक्टिव रखे, ताकि दुश्मन खौफजदा रहे। अपनी फौज को चौकस रखे, मुतहर्रिक रखे, कन्ना रखे, एक्टिव रखे, ताकि दुश्मन खौफजदा रहे। नंबर 2, कैसे अदल किया इबादत में? बिल्कुल, दूसरी सफ को भी मौका दिया कि वो आखिरी मसला,
मसला दो क्या था? मसला दो ये है, नबी इस्लाम इबादात में भी, नबी इस्लाम इबादात में भी अदल फरमाया करते थे। और ये मसला ऐसे निकला कि नबी इस्लाम ने दूसरी जमात को भी, नबी इस्लाम ने दूसरी जमात को भी आगे किया और आगे वाली जमात को पीछे किया, अपने साथ दो सजदे करवाए ताकि अदल हो जाए। हर एक जमात का एक एक रकत में सजदा जो है वो नबी इस्लाम के साथ हो और एक एक अपना अपना हो। क्या हो गया मसला फिर? अब देखिए आवाज सही है? आवाज सही है? आवाज बताना सही है? इनको है। अब देखिए, तो दूर से आएगी आवाज। अब सही है। इसमें इंटरनेट का मसला है ना, सिग्नल का मसला बहुत। नबी इस्लाम इबादत दो दो सजदा करने का। आखिरी मसला लिख लें, दुश्मन की पोजीशन देखकर, तीसरा मसला यह है, दुश्मन की पोजीशन देखकर नमाज खौफ की कैफियत में तब्दीली लाई जा सकती है। दुश्मन की पोजीशन देखकर नमाज खौफ की कैफियत में तब्दीली लाई जा सकती है। बिल्कुल पकड़ा नहीं जा रहा। नेट के आप पकड़े ना, आप लिखें इसे, ठीक है? पकड़ेंगे तो जाहिर है पकड़ा तो नहीं जाएगा, नहीं कोशिश करें। दूसरा मसला फिर मैं दोबारा कर देता हूं, नबी अलैहिस्सलाम इबादत में अदल फरमाया करते थे। जी, ऊपर वाली जो दो सूरतें आपने नमाज की कैफियत जो पढ़ी है ना, ऊपर वाली फर्स्ट और सेकंड हदीस में, उसमें दुश्मन किबले की तरफ नहीं है। उसमें दुश्मन किबले से हटकर दाएं है या बाएं है या पीछे है। ऐसी सूरत में एक सफ तो इमाम के साथ खड़ी होगी और दूसरी दुश्मन की तरफ होगी। वो कैफियत ऊपर बयान हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं जनाजे की तरफ। इंटरनेट खराब हो रहा है तो इसी का जनाजा पढ़ते हैं हम। जी जी, बिल्कुल दुश्मन की तरफ होंगी, दुश्मन की तरफ होगी। हाँ, इसमें देखें, एक तो सूरत ये है, दो तरह की जंगें होती हैं। एक जमीनी जंग भी हो जाती है। जमीनी जंग में यानी दुश्मन जो है आपके सरजमीन में दाखिल हो गया, तो उस पर भी अटैक आपने सरजमीन के जरिए ही करना होता है। इनके लिए तो यही कैफियत है जो हदीस में बयान हो चुकी है। कार्रवाई
ظاہر ایسی صورت میں اگر وہ اپنے علاقے میں ہی ہیں، اب نہیں ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ کا بیان، یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس کی جو کیفیات ہیں، جو مسائل ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جنازے کی نماز کے تعلق سے بہت قسم کی جہالت پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجاشیہ، نبی علیہ السلام نے اعلان کیا نجاشی کی موت کا، فی الیوم، اس دن، الذی مات فی، جس دن ان کا انتقال ہوا، وخرج بہم الی المصلی، نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر جنازہ گاہ کی طرف گئے، فصف بہم، آپ نے صفیں باندھی، وکبر اربعا، اور 4 تکبیرات کے ساتھ آپ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی۔ یہ روم کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ قیصر، قیصر، اور کسرا کہا جاتا تھا ایران کے بادشاہ کو۔ 3 لفظ استعمال ہوتے تھے، نجاشی، قیصر اور کسرا۔ روم کے بادشاہ کو قیصر سلطنت کو، اور حبشہ کی جو نجاشی، اور فارس ایرانیوں کی کسرا۔ جی، کسرا اور قیصر، بالکل ٹھیک ہے، کسرا ایسا ہی ہے، اور قیصر قاف قلم کے ساتھ ہے، قاف سواد یا سواد را، بالکل صحیح لکھا، قیصر و کسرا۔ اچھا، اس حدیث کا مسئلہ یہ ہے حبشہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خبر دی کہ وہ فوت ہو چکا ہے، حبشہ کا بادشاہ نجاشی۔ اس وقت موبائل نہیں تھے، پی ٹی سی ایل بھی نہیں تھا، اور یہ سفر کوئی دنوں پر مشتمل ہے، جس دن انتقال ہوا اسی دن خبر دے دی آپ نے۔ یہ کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ جی، نبی الاسلام مدینہ میں ہے، نبی الاسلام مدینہ میں۔ جو کچھ گمراہ فرقے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام عالم الغیب تھے، اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ مدینہ میں ہیں لیکن دنیا جہاں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبروں سے باخبر ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ خود قرآن میں موجود، اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، وہ غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اطلاع دی ہے۔ پیغمبر کا معاملہ تو ہوتا ہی اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ جو اطلاع دے دیتا ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے، نہیں اطلاع دیتا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر جبریل علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کا وعدہ کر رکھا تھا، وقت ہو چکا، جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے، نبی علیہ السلام پریشان ہو گیا کہ یہ جبریل علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام کے احساس ہوا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے باہر نکالا، جگہ کو دھویا، جبریل علیہ السلام داخل ہو گئے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتے ہوتے ہیں۔
कुछ लोग बड़े शौक से अपने आप को कहते हैं सगे मदीना, मदीना के कुत्ते हैं। मदीना के हो या मक्का के हो, लेकिन जिस घर में कुत्ता होता है वहां फरिश्ता नहीं आ सकता। अब आप जो मर्जी कुत्ता बन जाओ। एक शख्स जिसकी तकरीर अभी मैंने सुनी, जो अपने आप को कह रहा था हम जो भी हों से भी हों, हम सारे के सारे अल्लाह के रसूल के कुत्ते हैं। नाऊदु बिल्लाह मिन दालिक। अल्लाह ने अशरफ बनाया है, जबकि कुत्तों के बारे में आपने पढ़ लिया जिस बर्तन में मुंह लगा दे उसको 7 दफा पानी से और 1 दफा मट्टी से धोना होता है। अब आप कुत्ते बन रहे हैं तो बन जाए। अकीदा सही नहीं होगा तो वाकईतन कुत्ता क्या कुत्ते से भी बदतर है। ये थोड़ी मोहब्बत है, आप किसी की मोहब्बत और गुलामी में अपने आप को कुत्ता बना लें। ये तो अल्लाह ताला ने जो इंसान को अशरफ और ahsan बनाया है उसकी तौहीन है। बहरहाल ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही के जरिए इत्तला दे दी गई। अब नमाज जनाजा कहां पढ़ा जा रहा है? मदीना में। और मैयत कहां है? हबशा में। इसको क्या कहते हैं? गायबाना नमाज जनाजा। तीन तरीके से नबी इस्लाम ने जनाजा पढ़ा है। एक, मैयत सामने, असल तो जनाजा ये होता है। दूसरा, मैयत को कब्र में उतार दिया गया है, फिर आप कब्र पर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ें। और तीसरा, नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाया और मैयत सामने नहीं है, जिसको गायबाना नमाज जनाजा कहते हैं। तीनों तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। मसला नंबर 1, गायबाना नमाज जनाजा पढ़ना जायज है। इस शर्त के साथ उसकी नमाज जनाजा ना हुई हो, या जी उसकी नमाज जनाजा यानी गायबा नमाज जनाजा पढ़ना जायज है इस शर्त के साथ कि उसकी नमाज जनाजा ना हुई हो या एहतमाम के साथ ना हुई हो। यानी लोगों को बुलाकर, आजकल जैसे कोरोना में हुआ है, कोरोना में क्या हुआ, चंद अफराद ने खड़े होकर उसको कब्र में उतार दिया। नमाज जनाजा पढ़ने वालों को भी पता ही नहीं है कि उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ा या नहीं पढ़ा, बस खाना पूरी की और 2-4 खड़े हुए और उसको दफना दिया। ऐसी सूरत में उसका नमाज जनाजा गायबाना पढ़ लेना यह ज्यादा बेहतर है, ताकि उसका हक जो रुखसती के वक्त है वो अदा हो सके। और एक सूरत यह भी बन सकती है उसकी, जी माशाल्लाह अच्छा लिखा है आपने, जज़ाकल्लाह। एक सूरत यह भी हो सकती है इसकी कि किसी अहले तौहीद का, अहले हक का जनाजा हो, लेकिन पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला कोई जिसने पढ़ाया है वो भी अहले तौहीद नहीं है, और पढ़ने वाले भी अक्सर शाज़ व नादिर अक्सर गैर अहले तौहीद है। तो ऐसी सूरत में जाहिर है उसका नमाज जनाजा नहीं हुआ, तो उसका नमाज जनाजा अहले तौहीद अपनी मस्जिद के अंदर करके उससे मोहब्बत का इजहार करें। आजकल तो जनाजा आपने देखा है ना, 1 मिनट भी नहीं लगता और नमाज जनाजा का जनाजा हो जाता है। लिहाजा आप लोग, गुजारिश ये है, सुन्नत के मुताबिक नमाज जनाजा क्या होता है उसको समझें और सीखें, और कम से कम
अपना नमाज जनाजा पढ़ने के लिए वसीयत और नसीहत करके जाएं कि ये आखिरी हक जिसमें इंसान के लिए मगफरत होती है, दुआ होती है, जाना तो हम सब ने, कम से कम ये वसीयत और नसीहत करके जाएं, ऐसा नमाज जनाजा पढ़ाए जिसका अकीदा भी सही हो, जिसका मनज भी सही हो, जो सुन्नत के मुताबिक नमाज जनाजा पढ़ाए। एक जगह मैंने नमाज जनाजा पढ़ाया, जब नमाज जनाजा पढ़ाने लगे तो लोगों ने कहा कि नमाज जनाजा ऐसा पढ़ाइएगा जो हमारे यहां चलता है, लंबा ना कीजिएगा कहीं हम ही फौत ना हो जाए। तो मैंने कहा मैंने तो आपका या उनका किसी का नहीं, मैंने नमाज जनाजा वो पढ़ाना है जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक है, और इस दौरान अगर आप में से कोई फौत हो जाता तो उसका भी पढ़ा दूंगा मैं, मुझे परवाह नहीं है। दूसरा मसला, जब नमाज जनाजा पढ़ने वाले ज्यादा लोग हों, जब नमाज जनाजा पढ़ने वाले ज्यादा लोग हों तो नमाज जनाजा खुले मैदान में पढ़नी चाहिए, तो नमाज जनाजा खुले मैदान में पढ़नी चाहिए। तीसरा मसला, नमाज जनाजा में 4 तकबीरात हैं, अच्छा वो इसका भी मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि 4 तकबीरात में क्या करना होता है। आप भले लिख लें इसको। पहली तकबीर के बाद सना, सूरतुल फातिहा और कोई सूरत, जी बिल्कुल सही है। पहली तकबीर के बाद सना, सूरतुल फातिहा और कोई सूरत। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम। जी सना बिल्कुल। फिके हम्बली में वो कहते हैं कि सूरतुल फातिहा से शुरू की जाए, लेकिन नमाज की इब्तिदा होती ही सना से है। उमूमी अदिल्ला इस बात पर दलालत करते हैं। तो दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ा आपने? सूरतुल दुरूद इब्राहिम। तीसरी तकबीर में मैयत के लिए मसनून दुआएं, तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए मसनून दुआएं, तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए मसनून दुआएं। वो दुआएं कौन सी आगे आ रही हैं और वो आपने याद भी करनी है इंशाअल्लाह। इस तरह जनाजा सीख लें, इस तरह समझ लें, इतनी दुआएं याद कर लें कि अपना जनाजा खुद ही पढ़ें। वो ऐसे हो सकता है कि अपने बच्चों को सिखा दें, आपके बच्चे पढ़ें तो आपने पढ़ लिया। और चौथी तकबीर के बाद एक तरफ सलाम, और चौथी तकबीर के बाद एक तरफ सलाम। यह शरई नमाज जनाजा। बाकी छोड़ दें बेनमाजी का, उसकी बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी नमाज जनाजा तो सीख लें ताकि
पढ़ना कैसे है, फिर उसके बाद देख लेंगे बेनमाजी या नमाजी। दो सलाम साबित नहीं है। जनाजा में एक सलाम साबित है। बाद ज़ईफ रिवायात को जमा करके दो के भी कायल हैं, लेकिन सही हदीस में सिर्फ एक तरफ सलाम ही है, सिर्फ एक तरफ। खड़े खड़े पूरा जनाजा खड़े खड़े आप दाएं तरफ अस्सलाम वालेकुम कर दें बस। और ये भी हो सकता है आप सिर्फ चेहरा सामने और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कर दें। जी चौथे में यह था कि तकबीर के बाद दाएं तरफ सलाम एक। अब मसला सिर्फ इसमें यह है सूरतुल फातिहा का। अहनाफ फिक़्ह हनफी में नमाज जनाजा के अंदर सूरतुल फातिहा जायज नहीं है। फिक़्ह हनफी के अंदर सूरतुल फातिहा नमाज जनाजा के अंदर जायज नहीं है। जी रफ़ल यदैन के साथ ही होगी अहनाफ के नजदीक। वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये नमाज थोड़ी है, ये तो दुआ है, ये नमाज नहीं है, ये दुआ है। सूरतुल फातिहा को बतौर दुआ के तो पढ़ सकते हैं, बतौर तिलावत के नहीं पढ़ सकते। हद हो गई है। अपनी अकल से ये बात कैसे की जा सकती है? अब मैं आपके सामने बात रखता हूं। दुआ के लिए वुजू शर्त है? अब आपने जवाब देना है। अहनाफ कहते हैं ये दुआ है, दुआ के तौर पर पढ़ें आप। सवाल ये है क्या दुआ के लिए वुजू शर्त है? नहीं। तो जनाजा के लिए शर्त है या नहीं? जनाजा के लिए वुजू शर्त है? जी शर्त है। दूसरी बात, दुआ के लिए किबला रुख होना शर्त है? नमाज जनाजा के लिए बिल्कुल शर्त है। क्या दुआ के लिए तकबीर तहरीमा है? नमाज जनाजा के लिए है, बिल्कुल है। तो जब ये सारी शुरूत हैं तो फिर आप इसको दुआ कैसे कह रहे हैं? ये तो नमाज जनाजा है। हां, नमाज जनाजा में दुआ है, जिस तरह नमाज के अंदर दुआ होती है। यह कहना इसमें रुकू और सजदा नहीं है, जी हां बिल्कुल रुकू और सजदा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि सामने मैयत है। कोई ये ना समझ ले कि मैयत को रुकू और सजदा हो रहा है, इसलिए इस नमाज के अंदर रुकू और सजदा मुस्तस्ना कर दिया गया है। बाकी सारी चीजें मौजूद हैं, सारी लवाजमात मौजूद हैं। इंतहा दर्जे की यह खियानत है आप ये कहें कि नमाज जनाजा में सूरतुल फातिहा को बतौर दुआ के तो पढ़ सकते हैं, बतौर तिलावत के नहीं। अल्लाह के रसूल ने बतौर दुआ के पढ़ी थी, बतौर तिलावत के नहीं पढ़ी थी। ये फर्क कहां है? इस्तिस्ना यानी जुदा। जी चारों दफा। जी कब्रिस्तान में नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल से साबित है पढ़ना। जितनी बात साबित है उतनी ही साबित है। एक और मसला इस हदीस का, आखिरी मसला लिख लें। इस्तिस्ना का मतलब यानी किसी को किसी हुक्म से खारिज कर देना, इसको कहते हैं। किसी के फौत होने की खबर देना मुस्तहब अमल है। यह आखिरी मसला इस हदीस का। किसी की जी उनके नजदीक नहीं, उनके नजदीक वो कहते हैं बतौर तिलावत के नाजायज है, बतौर तिलावत के नाजायज है। बतौर दुआ के आप पढ़ सकते हैं जब आपको कोई और दुआ ना आती हो। इसी वजह से इनका एक जनाजा भी नहीं होता। इन जो भी नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं है, और जो जनाजा में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ेगा उसके पीछे भी नमाज जनाजा नहीं होता, और उसका नमाज जनाजा हुआ ही नहीं।
इसलिए होशियार बाशुद, वसीयत करके जाइएगा कि मेरा नमाज जनाजा सुन्नत के मुताबिक हो, नौहा ना हो, कुल खानी ना हो, और 40वां ना हो, बरसी ना हो। ये सारी बिदात और खुराफात हमारे मुआशरे में जब पाई जा रही हैं, तो आप अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में ऐसी बिदात देखें तो वसीयत करके जाएं कि मेरे जनाजे के ताल्लुक से ये सलूक ना करना, मेरे मरने के बाद मेरा कोई तीजा, मेरा कोई कुल, मेरा कोई फातिहा खानी, मेरा कोई 20वां और 40वां ना हो, मैं इससे बरी हूं। सारी खुराफात हैं जी। कुल खाना का मतलब अब आपको बताएं, इतनी सारी बिदात है। पाक और हिंद में यहां रहने वाले कैसे सवाल कर रहे हैं कुल खानी क्या होती है? आपने खजूर की गुठलियां नहीं देखी पढ़ते हुए लोग? गुठलियां पढ़ रहे होते हैं ना, उस पर दुरूद पढ़ रहे होते हैं, उस पर इस्तिगफार कर रहे होते हैं, उसमें यानी लाखों की तादाद में पढ़ी होती हैं, लोग पढ़ रहे होते हैं उस पर। सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं। कुल खानी क्या होता है? तीसरे दिन, मैयत इंतकाल के तीसरे दिन वो खाना तकसीम कर रहे होते हैं मैयत की तरफ से, और उसमें कुल पढ़ रहे होते हैं, फातिहा पढ़ रहे होते हैं। फिर 10वें दिन होता है, फिर 40वें दिन होता है, फिर हर साल होता है। कुरान खानी क्या होती है? बख्श ईसाले सवाब के लिए बच्चे बुला लिए, भाई कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने के बाद ये फूंक मार दी ये अम्मा के लिए, इधर फूंक मार दी अब्बा के लिए, और इधर से उनको खाना खिला दिया। सारी बिदात हैं, सारी बिदात हैं। हर साल 40वां नहीं, हर साल जो है 40वां भी होता है, सालाना भी होता है। बिदत में ब्रेक थोड़ी होती है। अच्छा, आखिरी बात या मैं कर दूं, आगे बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि एक हदीस में ऐलान करना मना है। एक हदीस में ऐलान करना मना है, मैयत का मना है, और इसमें अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया है। एक हदीस में मना है और इसमें खुद आपने ऐलान किया, तो जवाब क्या होगा? जवाब यह है, किसी भी मैयत की खबर इस तरह देना कि उसकी सिफात को बयान करते हुए, वो तो बहुत अच्छा था, वो तो ये था, वो तो ये था, उसके बगैर क्या होगा और ये होगा, इस तरह सिफात को, खूबियों को बयान करते हुए उसकी मौत की इत्तला देना बिल्कुल गलत है। खाली सिर्फ मौत की खबर देना यह जायज है। सिर्फ नाम नहीं, ये भी होता है, बयान किया जा रहा होता है कि ये तो ऐसा था और ये तो ऐसा था, ये वो है और ये वो, इस तरह की सिफात के साथ तो फिर नाजायज है। सिर्फ नाम लेकर ऐलान कर देना यह जायज है। नबी इस्लाम ने कब्र पर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ाई है, आगे हदीस आएगी। मस्जिद के अंदर भी नमाज जनाजा हो सकती है, उसका जिक्र भी आगे आ रहा है। तो इंशाल्लाह वो आपके सारे सवालात के जवाब जो हैं किताबुल जनाइज में आ जाएंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर व सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी जी जी।